Hello, my dear students. How are you all? Myself Anjali Panchal, your English teacher. Welcome to the online classes from Devasi International Public School. Today I am here to teach you lesson number 10 from our literature session, that is the story of cricket. So before starting this story, before you read paragraph is there, so let's understand first it. Sport is an integral part of a healthy life. It is one way in which we amuse ourselves, compete with each other, and stay fit. So, students, here we can say sports is an integral part of a healthy life. Healthy life means a fit life. हमारी जो healthy life है उसमें sport plays an important role, and it is one way in which we amuse ourselves. ये एक तरीका है, एक वे है जिसे हम अपने आप को अम्यूज़ कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं. कंप्लीट विद ईच अदर एंड स्टे फिट, हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, अम्यूज़ कर सकते हैं. अनदर थिंग, और हम फिट भी रहते हैं. अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, cricket appears to be the most appealing national entertainment today. There are so many sports like hockey, football, tennis, but in nowadays cricket appears to be the most appealing national entertainment. अभी के दिनों में जो नेशनल एंटरटेनमेंट का गेम है वो क्रिकेट है. हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट, बट हम क्रिकेट गेम के बारे में कितना जानते हैं, या द क्वेश्चन इज दैट. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ क्रिकेट. दैट फर्स्ट पैराग्राफ. Cricket grew out of the many stick and ball games played in England 500 years ago. So, we can say cricket is a game that come from England before 500 years ago, and that is a game we can say played by stick and ball. We can say stick and ball game. बॉल और स्टिक से खेले जाने वाली गेम में से एक गेम है क्रिकेट. अ वर्ड बैट इज एन old English word that simply means stick or club. Here the word bat is an old English word that means we can say stick or club, जिसका मतलब छड़ी होता है. By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. Here अराउंड 17th सेंचुरी तक क्रिकेट को एक डिस्टिंक्ट गेम, मतलब एक अलग पहचाने वाले गेम को की तरह जाना जाता था. पहले वो एक बॉल और स्टिक से खेलने वाली एक गेम थी, बट फिर उसको एक अलग गेम की तरह जाना गया. टिल द मिडल ऑफ द 18th century, bats were roughly the same shape as hockey sticks, curving outwards at the bottom. टिल द मिडल ऑफ द 18th century के मिडल तक बैट्स थे, वो उनका शेप हॉकी स्टिक्स जैसा था, जैसे कि कर्विंग आउटवर्ड्स, बाहर की ओर कर्व किया गया लास्ट में. स्टूडेंट्स, आई होप यू नो अबाउट हॉकी स्टिक की तरह वो आगे से कर्व था. देयर वॉज अ सिंपल रीज़न फॉर दिस, उसके लिए एक सिंपल रीज़न था. व्हाट वॉज दैट? The ball was bowled under arm along the ground and curved at the end of the bat gave batsmen the best chance of making contact. And what is the simple reason here? Because जो पहले बॉल था वो नीचे से डाला जाता था, ज़मीन पर रगड़ा कर डाला जा रहा था, तो बैट्समैन को बैट के प्रॉपर कांटेक्ट के लिए वो जो बैट का शेप था वो हुकी की तरह रखा गया था. One of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end in a draw. Students, another peculiarities means कोई अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिकेट का.
जो है कि टेस्ट मैच जो थी वो कैन गो ऑन मीन्स चलती थी फॉर 5 days, 5 दिन तक चलती थी, एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ, और फिर भी वो ड्रॉ में जाती थी. हियर ड्रॉ मीन्स अ रिजल्ट ऑफ गेम इन विच नाइदर साइड विंस नॉर लॉसेस, मतलब कोई भी जीतता भी नहीं था, कोई हारता भी नहीं था, टाई जिसे हम कहते हैं. तो मैच ड्रॉ में चली जाती थी. No other modern team sports takes even half as much time to complete. No other modern team. Modern team here means अभी की कोई sports, टीम स्पोर्ट्स मतलब जो टीम में खेले जाने वाली गेम होती है अभी की, वो इससे हाफ टाइम भी नहीं लेती है कंप्लीट होने में. A football match is generally over in an half and an hour and a half means फुटबॉल मैच जो है वो 1.5 आवर में कंप्लीट होती है. इवन बेसबॉल completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match, the shortened version of modern cricket. इवन बेसबॉल कंप्लीट्स, बेसबॉल जो है गेम वो भी 9 इनिंग्स की होती है, वो भी जो अभी का जो मॉडर्न शॉर्टन वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट है उससे भी हाफ टाइम में कंप्लीट हो जाती है बेसबॉल, जो कि 9 इनिंग्स की होती है. बेसबॉल मीन्स गेम popular in the USA played with a bat and ball by 2 teams of 9 players each on a field with 4 bases. So another paragraph, next paragraph says that another curious characteristics of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size or shape of the ground is not. Students, another curious characteristics means एक और जानने वाला जो हमें एक्साइटेड करता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिकेट का कि उसकी जो पिच होती है वो स्पेसिफाइड होती है मींस अब फॉर 22 यार्ड्स, जो 22 यार्ड्स की होती है. बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज़ नॉट, बट जो पूरा प्लेइंग एरिया है, जो ग्राउंड का एरिया है, उसका साइज़ या शेप फिक्स्ड नहीं होता है. मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल lay down the dimensions of the playing area. जबकि अदर टीम स्पोर्ट्स हैं जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, उसमें पूरा जो प्लेइंग एरिया होता है उसका डायमेंशंस दिया होता है. डायमेंशंस इंक्लूड्स लेंथ, ब्रेथ एंड ऑल्सो हाइट. सो यहाँ पे जो ग्राउंड होते हैं, प्लेइंग एरिया होते हैं हॉकी और फुटबॉल में, उसमें सारा डायमेंशंस प्रोवाइड करते हैं ऑफ द प्लेइंग एरिया. क्रिकेट डज नॉट, बट क्रिकेट का नहीं है. ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्क्यूलर लाइक चिपॉक इन चेन्नई. जो ग्राउंड्स हैं क्रिकेट में वो कैसे होते हैं, ओवल लाइक, ओवल शेप के होते हैं, एडिलेड ओवल और नियरली सर्क्यूलर. जो एडिलेड ओवल शेप के होते हैं या तो फिर सर्क्यूलर होते हैं, नियरली सर्क्यूलर मतलब गोलाकार होते है, जैसे कि चिपॉक इन चेन्नई. यू कैन सी चिपॉक इन चेन्नई, दैट इज द स्टेडियम वी कैन सी इन चेन्नई. A 6 at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at Feroz Shah Kotla in Delhi. Another 2 ground provided over here, Melbourne cricket ground that is in the Melbourne city of Australia and Feroz Shah Kotla in Delhi. Next paragraph, there is a historical reason behind both these oddities. There is a historical reason, yes. यहाँ पे जो 2 चीज़ आपने ऊपर देखी एंड दैट थिंग्स हैव द हिस्टोरिकल रीज़न, इसके पीछे हिस्टोरिकल रीज़न है. इन सब के पीछे, इन सब जो 22 यार्ड्स की पिच है, जो पिच का एरिया डिफाइंड है एंड नॉट फॉर द ग्राउंड एरिया, that all depends on the historical reason, which was that so cricket was the earliest modern team sports to be codified. Cricket was the earliest, सबसे पहली ऐसी modern team sport थी जिसके codified means rules and regulations standardize कर दिए गए थे, fixed कर दिए गए थे. The first written laws of cricket were drawn up in 1744. पहला जो क्रिकेट का
लॉज ऑफ क्रिकेट था, जो पहला लॉ था वो 1744 में तय हुआ था. दिस स्टेटेड, उसमें क्या था, द प्रिंसिपल्स शैल चूज फ्रॉम amongst the gentlemen present two empires who shall absolutely decide all disputes. So students, in this law there was stated that the principal shall choose from amongst the gentlemen present two empires. वहाँ पे जो टू एम्पायर्स होते हैं जिनको चूज़ किया जाता है, इन दैट टू एम्पायर्स सॉल्व ऑल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द प्लेयर्स ऑल्सो एंड बिटवीन द गेम ऑल्सो. जो भी प्लेयर्स जो भी एम्पायर होते हैं वही सारा डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं. सो ये उसमें पहले से किया गया था. एंड द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल अक्रॉस दैम 6 इंचेस. द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस. जो स्टम्प्स होते हैं पीछे रखने के वो 22 इंचेस हाइट के होने चाहिए, और उन पर रखने वाली बेल मतलब जो गुल्लियाँ उनकी दो स्टम्प्स के बीच में रखते हैं उसे बेल कहते हैं, तो वो 6 इंचेस होनी चाहिए. द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces. और जो बॉल का वेट होता है वो 5 to 6 ounces होता है. द टू सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 yards अपार्ट. एंड जो डिस्टेंस होता है वो दो स्टम्प्स के बीच में वो 22 yards होता है. वी कैन से द पिच ऑफ द मैच. द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन इन द 1760s एंड Marylebone Cricket Club was founded in 1787. स्टूडेंट्स, वर्ल्ड के जो फर्स्ट क्रिकेट क्लब थे दो फॉर्म हुए थे, दैट इज़ हैम्बल्डन इन 1760s, जो 1760s में हैम्बल्डन था, और दूसरा था मैरीलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC, दैट वाज फाउंडेड इन 1787. During the 1760s and 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. So students, what happened during 1760s to 1770s? So 1716 से 1770s तक जो पिच पर जो बॉल को नीचे रोल करके डालने वाला सिस्टम था वो चेंज हो गया था. उसके बदले बॉल को हवा में भी थ्रू द एयर मीन्स बॉल को अभी हवा में कहीं से भी डाल सकते हैं, वैसा रूल हो चुका था. This change gave bowlers the options of death deception through the air plus increased pace. इससे जो बॉलर्स हैं उनको अच्छा खासा लेंथ और डेप्थ मिल जाता है हवा में बॉल को मूव करवाने का. इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग. इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग. स्पिन एंड स्विंग की बॉल को जो न्यू पॉसिबिलिटीज़ मिल जाती है. In response, batsmen had to master timing and shot selection. उसके लिए इसके रिस्पॉन्स में जो बैट्समैन है उनको भी जो बॉलिंग का टाइमिंग है, जो उनको शॉट मारना है, उसमें उनको क्या करना होगा, मास्टरी लेनी होगी. बिकॉज उनका जो शॉट सिलेक्शन है, जो टाइमिंग है, जो बॉल थ्रू कैसे आती है हवा में से, वैसे उनको भी सामने प्रैक्टिस चाहिए. One immediate result was the replacement of the curved bat with the straight one. Another immediate result which was, so अगला जो दूसरा immediate result है वो क्या था, तो replacement of the curved bat with the straight one. जो curved bat यूज़ हुआ करता था उसकी वजह से उसके बदले अभी straight bat का यूज़ होने लगा. And the weight of the ball was limited to between 5.5 to 5.34 ounces. जो बॉल का वेट 5 and 6 ounces था उसको कम करके 5.5 से 5.34 ounces का कर दिया. And the width of the bat to 4 inches. और जो बैट की width थी वो 4 inches की हो गई. In 1774 the first leg before law was published. सो 1774 में एक नया फर्स्ट लेग लॉ जो हुआ वो पब्लिश्ड हुआ. ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन. और उस टाइम पे क्रिकेट में जो 2 स्टम्प्स थी उसकी जगह पे 3 स्टम्प्स कॉमन हो चुके. बाय 1780 3 days had become the length of a major match, and this year also saw the creation of the first 6-seam cricket ball.
सो स्टूडेंट्स बाय द 1780s जो मेजर मैच थी वो 3 दिन की हो गई. द 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच की 3 दिन की मैच हो गई. और दैट इज द ईयर ऑल्सो सो द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 cricket ball. And another paragraph says that if you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its origin in rural England. इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, अगर आप देखते हो तो गेम के इक्विपमेंट में जो चेंजेस आए हैं टाइम के साथ, जो नए चेंजेस आए हैं, बट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड. बट वो उसके जो रूल्स रेगुलेशंस है प्लेइंग के, दैट इज़ सेम एज बिफोर दैट वॉज प्लेड इन रूरल इंग्लैंड. So cricket's most important tools are all made of natural pre-industrial materials. क्रिकेट के जो सारे इम्पॉर्टेंट टूल्स है वो किस में से बनते हैं? नेचर चीज़ों में से बनते हैं, प्री इंडस्ट्रियल मटीरियल्स में बनते हैं, एंड नॉट इट इज़ इंडस्ट्रियल मटीरियल. द बैट इज़ मेड विथ लेदर, ट्विन एंड कॉक. सो दिस 3 kind of material are used for making bat. Even today both bat and ball are handmade, not industrially manufactured. बल्कि अभी भी जो बैट एंड बॉल है वो ऑलवेज हैंडमेड ही यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है. द मटीरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम. जो बैट का मटीरियल है वो टाइम के साथ थोड़ा चेंज हुआ है. वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 pieces. पहले जो बैट था वो पूरा एक सिंगल वुड में से ही बनता था, पूरे एक ही लकड़े में से पूरा बैट बन जाता था. बट नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 pieces. बट अभी वो 2 pieces से बनता है. द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री. जो बैट का ब्लेड होता है वो एक विलो ट्री के वुड में से बनता है. एंड द हैंडल विच इज़ मेड आउट ऑफ कैन that became available as European colonists and trading companies established themselves in Asia. एशिया की कंपनीज़ में यूरोपियन कॉलोनिस्ट और ट्रेडिंग कंपनीज थ्रू जो उनका कैन होता है उससे हैंडल बनता है. अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़ refused to remake its tools with industrial or man-made materials. Plastic, fiberglass and metal have been firmly rejected. So unlike golf and tennis, golf और टेनिस की तरह क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज्ड, क्रिकेट में भी जो उसके मटेरियल्स है, उसके जो टूल्स है, उसको इंडस्ट्रियल या मैनमेड मटेरियल से बनाने के लिए रिफ्यूज्ड कर दिया है. जैसे कि प्लास्टिक, फाइबरग्लास, मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड. इन मटेरियल्स को टूल्स बनाने के लिए रिजेक्ट कर दिया है. बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज. इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मीन्स जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो अभी यूज़ होते हैं हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज. वो टेक्नोलॉजी के चेंज के साथ यूज्ड होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 and protective gloves soon afterwards, and the modern game would be unimaginable without helmets made out of metal and synthetic lightweight materials. So students, here the pads which the cricketer wears on the legs and arms that are introduced in 1848, जो वल्कनाइज्ड रबर होते हैं जिसके पैड्स क्रिकेटर्स पहनते हैं, उनको यहाँ पे प्रोटेक्टिव ग्लव्स कहा गया है. एंड मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स. और जो अभी की मॉडर्न गेम है क्रिकेट है जो हेलमेट के बिना अनइमेजिनेबल है, हेलमेट के बिना नहीं खेली जा सकती है. और जो हेलमेट होता है वो मेटल और सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल में से बना रहता है. So students, this is all about the first part of the story of cricket. I hope you all understood, and the next part will be continued in the next video lecture. So till that, thank you very much.